Dear students, welcome to this video. Myself Dr. Vin Prasad, and today we will continue the examples on arc length or length of the curve, right? Before this I have already explained a few examples, so today we are also taking some more examples on the topic length of the curve. So let us start. Here we have an example. Find the length of the arc of the parabola y square is equal to 4ax, right, intercepting between the vertex and a extremity of the lattice rectum. So what is asked in the question में पूछ रहा है एक पैराबोला है आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, राइट। आप इसका ये लेटेस्ट रेक्टम जानते हैं, पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम, इसकी लेंथ 2a होती है, एसेंट्रिसिटी है इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो a,0 हो गए, राइट। तो यहाँ पर आपको जो आर्क लेंथ फाइंड करनी है वर्टेक्स से लेटेस्ट रेक्टम की एक एक्सट्रीमिटी यानी कोने पर, यानी इस लेंथ की बात कर रहा है, o से a लेंथ की वो बात कर रहा है। क्लियर हो गया? So it is very clear the limits of x are 0 here, and here we have the limits of x is a. So let us start. Here we have the curve y square is equal to 4x, y is equal to 2 root a into root x. This question may be done in another way in the books, but I am solving in this manner, right? Later on I will discuss that matter, that way also to you. So first we see this, the simpler way or the sequential way we can say that we have learned. So here we have dy by dx is equal to root a, root x differential you know very well, 1 upon 2 root x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, root a upon x आ गया, स्क्वायर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर की वैल्यू मैं अलग से निकाल रहा हूँ, इज इक्वल टू 1 प्लस dy by dx is root a upon root x होल स्क्वायर, दिस इज a plus x upon x. This is the calculation, I am not explaining this one, right, as you are more sincere to solve this one, right. Now we have as arc length का formula कितना होता है, इंटीग्रल लिमिट x is equal to a to x is equal to b. So here x is equal to a, it's mean इनिशियल पॉइंट 0 हो गया और कहाँ तक मेजर करनी है आपको, a, इस एक्सट्रीमिटी तक। तो यहाँ पर एक्सट्रीमिटी x की वैल्यू क्या आपका a है, a स्क्वायर रूट 1 प्लस dy by dx होल स्क्वायर एंड dx, राइट, और अंडर रूट 1 प्लस dy dx होल स्क्वायर dx वैल्यू दिस वन, I just substitute here, right. Now what I did, I substitute, there is a transformation you can say, x is equal to a tan square theta, right, so that it will come out from the square root sign, as you 1 plus tan square theta becomes sec square theta, right. All the substitution are made here. Now what about the limits? If you substitute x is equal to 0 here, right, 0 upon a 0, tan theta बराबर 0, it's mean tan square theta बराबर 0, so theta is equal to 0 degree, right. And if you substitute a here, so theta is equal to pi by 4. Got it? Tan square theta is equal to a, right, so theta is equal to pi by 4, right, because we have this extremity, right. So limit will be 0 to pi by 4, and I have make all the substitution here. X is equal to a tan square theta, and here a tan square theta, a will be common out, a will be cancelled, the numerator will be 1 plus tan square theta, 1 plus tan sec square theta अंडर रूट से बाहर आ गया, sec theta हो गया, नीचे tan square theta अंडर रूट से बाहर हो गया, tan theta हो गया, और dx की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, a tan square theta का कितना आ जाएगा 2a, और tan theta पे tan theta का sec square theta d theta, 2a मैंने बाहर लिख लिया, राइट, और ये आपका sec square theta और tan theta यहाँ पर लिखा हुआ है, राइट, tan theta कैंसिल हो गया, यहाँ गया is equal to 2a 0 to pi by 4 आपकी लिमिट हो गई, राइट, ये लिमिट अभी मैंने बताया था कैसा है लिमिट, एंड दिस इज योर sec क्यूब थीटा d थीटा इज इक्वल टू 2ai, मैंने इस इंटीग्रल को क्या मान लिया, i मान लिया, एंड दिस इज योर i, राइट और नॉट। अब स्टूडेंट ये वेल नोन इंटीग्रेशन है, आप लोगों ने 12th क्लासेस में किया भी है, जिसमें राइट हैंड साइड में फिर से वही इंटीग्रल आ जाता है। तो
तो मैंने इस आई को अलग से सॉल्व कर रखा है। इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 4 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, सॉरी sec क्यूब, दिस इज sec क्यूब, दिस इज sec क्यूब d theta, right, and I can break it sec theta into sec square theta d theta, right। हम सेकंड किस फंक्शन को मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। तो sec स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप tan थीटा जानते हैं, sec थीटा का भी आप जानते हैं, मगर मैं इसको सेकंड इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि sec स्क्वायर थीटा का डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आपका इंटीग्रेशन आ जाए। ये स्टूडेंट मैंने इसको सॉल्व करा, राइट। इसकी वैल्यू आ गई आपकी √2। मैं इसको एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। ये sec क्यूब थीटा आपका वापस बन जाएगा, इसको ध्यान रखिए। यहाँ पर आपका क्या sec थीटा और tan स्क्वायर थीटा का, tan स्क्वायर थीटा को आप sec स्क्वायर थीटा -1 sec क्यूब थीटा माइनस sec थीटा, ये माइनस है तो यहाँ पर एक प्लस आ गया, राइट। ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो गई, i के इक्वल हो गए। तो इधर ले गया मैं इसको i प्लस आई कितना हो गया 2i हो गया। ये आपका √2 है, प्लस इसको जब sec थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो log sec थीटा प्लस tan थीटा 0 to पाई बाय 4। लिमिट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करी मैंने sec पाई बाय 4 प्लस tan पाई बाय 4, sec पाई बाय 4 की वैल्यू √2, tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 माइनस लोअर लिमिट log sec 0 यानी cos 0 का उल्टा, cos 0 की वैल्यू 1 और ये कितना tan 0 की वैल्यू 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस log 1 यू नो 0 होता है, राइट। तो मेरे पास i इंटीग्रल की वैल्यू आ गई 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस लॉग √2 प्लस 1। इस इक्वेशन 2 को मैंने कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। दैट वाज माय इक्वेशन नंबर फर्स्ट, राइट। तो यहाँ पर i की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। i की वैल्यू कितनी है आपके पास, ये 2 है तो पहले से 1/2 √2 प्लस लॉग √2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ऐसा आ गया आपका a बच जाएगा और कितना आ जाएगा √2 प्लस लॉग √2 प्लस 1, a √2 प्लस लॉग। So this is my